welcome you all in this meeting of Indraprastha Lodge. In the beginning, I would like to congratulate and thank Brother Taneja, with whose efforts the Indraprastha Lodge is still alive. There was a time when this lodge was withering away. Hardly any member was attending the lodges. Sometimes I saw there was 1 or 2 members only. But today, because of his efforts to conduct the meeting online, I can see that a good number of people, not only from our lodge, but all over the country, are participating in these online conferences and are getting benefited. So once again, I thank him for all his efforts. He is not only organizing the meeting, he is recording the meetings also and putting them on YouTube and all other WhatsApp websites for everybody's benefit. Today's talk, as we know, is organized for Patanjali's Yog Darshan. Patanjali's Yog Darshan, as we know, have the 4 parts: the Samadhi Pad, Sadhana Pad, Vibhuti Pad, and Kaivalya Pad. Long time ago, we conducted a discussion on Samadhi Pad and Sadhana Pad. And now we have to discuss the Vibhuti Pad and Kaivalya Pad. We have 2 days assigned for these discussions. Today, I would like to recapitulate first what we discussed few months ago in the Samadhi Pad and Sadhana Pad. Samadhi Pad is mainly introduction to Yog Darshan. It tells us briefly what is the Yog as for Patanjali, and then it tells us what is a Samadhi. And in the latter part of Samadhi Pad, we discuss about the various types of Samadhi. There are various terms which we have already discussed. I hope you won't find difficult to go through them again. Now, after that, we have the Vibhuti Pad, which is the actual practice of yoga, attainment of various siddhis, and then how to get rid of those siddhis in our pursuit for the Kaivalya Pada. The Kaivalya Pada, the 4th part is Kaivalya Pad, which discuss in details about the journey of alone to alone and to attain the Kaivalya Pad. So let us start with our discussion. As we see, the Patanjali says in the beginning, Ath Yoganushasanam. Those of you who have the book with you can take it out and they will help them in their discussion. Now, first the Patanjali says, Ath Yogas Nushasanam. Now is the discourse on yoga. Now, what is yoga? Again, Patanjali says, Yogaschitta Vritti Nirodha. योग जो है वो चित्त की वृत्ति का निरोध है. तो last time we saw that what is चित्त. चित्त जो है वो हमारा मन ही है, जिसको हम मन कहते हैं, चेतना कह देते हैं, माइंड कह देते हैं, इसकी कॉन्शियसनेस भी कहते हैं.
इसकी जो एक्टिविटीज है वही उसकी वृत्तियां हैं। जो हमारे विचार हैं, हमारी भावनाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं, हमारी लालसाएं हैं, कामनाएं हैं, और हायर लेवल पे जो हमारा थिंकिंग है, जो हमारा स्पेकुलेशन है, इंट्यूशन है, ये सब सारी जो एक्टिविटीज हैं वो चित्त की जो हैं वो वृत्तियां हैं। और योग क्या है? योगः चित्त वृत्ति निरोधा। योग जो है वो चित्त की वृत्ति का निरोध है। इन वृत्तियों का निरोध जो है वही योग है। तो हम देखते हैं फिर आगे ये कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। उससे जो दृष्टा है वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। दृष्टा कौन है? दृष्टा जो साधक है, जो योगी है। अगर हम योग की साधना कर रहे हैं तो इसका तात्पर्य हमसे है। दृष्टु स्वरूप, हमारा स्वरूप क्या है? हम सब लोग जानते हैं, पढ़ते आए हैं कि हमारा स्वरूप जो है वो ईश्वर का ही रूप है। हम ईश्वर का ही रूप है। जैसे कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तत्त्वमसि, यू आर दैट, तुम वही हो। तो ये जो चीज है, इसी स्वरूप को जो है प्राप्त करने के लिए हम योग करते हैं। अब आगे ये कहते हैं वृत्ति सारूप्यम मित्र तत्र। तो जब हमारी चित्त की वृत्ति का निरोध हो जाता है तो हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। लेकिन यदि वो अवस्था नहीं है, दूसरी अवस्था है जब हम वृत्ति के सारूप्य हैं, तो जैसे वृत्ति का रूप होता है उसी के अनुसार जो है हमारा भी स्वरूप हो जाता है। जैसा हम जानते हैं कि जो मन है, माइंड है, वो पानी की तरह है। पानी का कोई अपना रूप नहीं होता, पानी का कोई रंग नहीं होता। किसी भी पात्र में आप पानी को डाल दीजिए तो पानी उसी का आकार ले लेता है। सुराही में डाल दीजिए तो सुराही की तरह हो जाता है, ग्लास में डाल दीजिए तो ग्लास की तरह हो जाता है। ऐसे ही जो है इसका कोई रंग भी नहीं है। लाल रंग मिला दीजिए तो लाल हो जाएगा, नीला हो जाएगा, पीला हो जाएगा। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। उससे दृष्टा जो है वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। अब ये कहते हैं वृत्ति स्वरूपियम इत्र तत्र। और दूसरी अवस्थाओं में जो है वो इसका रूप जो है वो डिफरेंट दिखाई देता है। अब आगे कहते हैं वृत्तियां पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा। वृत्तियां जो हैं वो 5 तरह की हैं, और इन पांचों में जो वृत्तियां हैं वो क्लिष्टा है और अक्लिष्टा है। क्लिष्टा का तात्पर्य जो है वो वृत्तियां जो क्लेशदायक हैं, जो पीड़ादायक हैं। ये वो वृत्तियां हैं जिसको हम सकाम रूप से अपनी जो है वो प्लेजर के लिए, आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए करते हैं। पर ये वृत्तियां जो हैं ये हमको बंधन में बांधती हैं। इससे जो कर्म होते हैं वो हमके फल हमको नीचे की तरफ ले जाते हैं। ये हमारे योग में नहीं सहायक हैं। अर्थात ये जो हैं ये त्याज्य हैं, त्याग करने योग हैं। और दूसरी वृत्तियां जो हैं वो अक्लिष्टा हैं, वो क्लेशदायक नहीं है। वो वृत्तियां जो हैं वो हमारे अच्छे कार्य हैं, हमारे पुण्य कार्य हैं, जो हमको अपने योग में उत्थान में सहायता करते हैं और हमको अपना लक्ष्य पाने में, प्राप्त करने में जो है वो मदद करते हैं। तो वो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं। ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट को हमें अपने विवेक का जो है वो प्रयोग करते हुए उनका जो है वो प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब ये वृत्तियां कौन है? वृत्तियां पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा। अब ये 5 वृत्तियां हैं। प्रमाण, विपर्य है, विकल्प,
निद्रा स्मृत्या, 5 हैं, प्रमाण है, विपर्य है, विकल्प है और निद्रा है और स्मृति है। तो अब हम देखते हैं कि प्रमाण जो है ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, डायरेक्ट नॉलेज है, राइट नॉलेज है। विपर्य जो है वो रॉन्ग नॉलेज है, वो उसका जो हम रूप अनुभव कर रहे हैं वो रूप उसमें है नहीं। और विकल्प जो है ये सिर्फ एक कल्पना है, ये जो है इसकी कोई रूप नहीं है, सिर्फ शब्द और ज्ञान है। जैसे कि बहुत सी पुस्तकें हमने पढ़ी जो कोरी कल्पना है, उसका कोई बेस नहीं है। जैसे कि हमारी पहले हम स्वर्णकांता, चंद्रकांत के पढ़ते थे, तो वो जो थी उनका कोई बेस नहीं था, वो कोरी कल्पना थी, तो वो विकल्प ज्ञान है। उसके बाद निद्रा की जो स्थिति है उसको हमें ये समझना चाहिए कि निद्रा जो है वो सेसेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज नहीं है, उसमें माइंड जो है वो पूरी तरह से जागृत रहता है और सारा एक्टिविटीज करता रहता है। निद्रा में हालांकि हम सोए रहते हैं, कोई हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता है, फिर भी हम देखते हैं कि वो कोई हमसे मिलने आया, उससे हमारी बात हुई, उसने क्या कपड़े पहने हुए थे, उसने कहा जो है क्या कहा, उसके साथ हम कहाँ कहाँ गए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमको दिखाई देती है, अनुभव होती है। जब स्वप्न से हम जाग जाते हैं तो काफी देर तक जो है उसकी स्मृति भी बनी रहती है। तो ये निद्रा भी जो है ये माइंड की एक प्रवृत्ति है। उसके बाद कहते हैं स्मृतिया। स्मृति क्या होती है? यदि हमारा कोई अनुभव हुआ तो उसका इम्प्रेशन जो है वो बहुत समय तक मिटता नहीं, वो अनुभव बना ही रहता है, इसको स्मृति कहते हैं। तो ये 5 वृत्तियों को जान लेने के बाद अब हम ये देखते हैं कि इन वृत्तियों का निरोध क्या कहते हैं, ये हमने पढ़ लिया। और अब आगे हम देखते हैं कि इनका निरोध कैसे करते हैं। तो उसको कहते हैं अभ्यासार्थात वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। इन वृत्तियों का निरोध जो है वो हम अभ्यास और वैराग्य से करते हैं। अभ्यास क्या है? ये एक प्रैक्टिस है जिसको कहते हैं। और जो जैसा हमने पहले देखा था कि योग साधना के लिए जो है हम एक वो स्थान निश्चित कर लेते हैं, समय निश्चित कर लेते हैं। ये कोई आवश्यक नहीं है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में ही योग की साधना करें। जब भी आपको सूटेबल हो, जब आपकी आंख खुल जाए तो उसमें जो है हम बैठ जाते हैं। और तो ये हमने 5 वृत्तियां जो है वो देख ली, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतिया। प्रमाण जो है वो डायरेक्ट नॉलेज है, राइट नॉलेज। विपर्य इज फॉल्स नॉलेज। विकल्प इज इमेजिनेशन, फिक्शन, कल्पना। निद्रा जो है स्लीप है और स्मृतिया मेमोरी है। अब इन 5 को जो है वो चित्त की वृत्तियों के निरोध के लिए अब पतंजलि ऋषि कहते हैं कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अभ्यास और वैराग्य से उनका निरोध हो जाता है। अब जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि अभ्यास जो है वो अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए हम एक प्रत्यय ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। हम किसी मंत्र पे भी जो है ध्यान कर सकते हैं। गायत्री मंत्र बहुत अच्छा है, या हमारा जो महामृत्युंजय मंत्र है उस पर ध्यान कर सकते हैं, या हम अपने इष्ट देव का ध्यान कर सकते हैं, या अगर हम बुद्ध भगवान की दी हुई जो हमारी विपश्यना पद्धति है उस पे भी हम अपने श्वास पे ध्यान कर सकते हैं। तो कोई ऐसा जो है हम प्रातःकाल उठ जाए और उठने के बाद जो है हम अपना स्नान कर लें, अच्छे कपड़े पहन लें और एक अपना योग स्थली बना लें। वो कोई भी हो सकता है। घर में अगर कोई कमरा है तो बहुत अच्छा है, अगर कमरा नहीं है तो कमरे का कोई कॉर्नर है, वहीं पे हम जो है अपना
आसन लगा लें। और उसके बाद यदि धूप या अगरबत्ती आप जलाते हैं तो उसको जला लें। अपने इष्ट देव की कोई चित्र रखना चाहते हैं तो उसको रख लें। और उसके बाद एक अपना आसन जो है वो हम सेलेक्ट कर लें। वो आसन कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि हम पद्मासन में ही बैठें या बद्ध पद्मासन में बैठें। अगर बैठ करके हमारा ध्यान लग जाता है, कुर्सी पे बैठ के ध्यान लग जाता है, चौकी पे बैठ के ध्यान लग जाता है, तो वो भी ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। और उसको बैठने के बाद जो है हम अपनी योग प्रक्रिया शुरू करते हैं। और उसके लिए जो है हम अपने ऑब्जेक्ट या जो हमारा प्रत्यय है उसको हम ध्यान करते हैं। कंसंट्रेशन से मेडिटेशन शुरू होता है। या अगर हम श्वास पे अपनी जो है ध्यान कर रहे हैं तो हम अपने श्वास को जो है वो ऑब्जर्व करने लगते हैं। हम देखते हैं कि जब हमारा श्वास अंदर आ रहा है, श्वास बाहर जा रहा है। जब श्वास अंदर जा रहा है तो हम अपने श्वास के साथ जो है भीतर को जाएं। जब श्वास बाहर जा रहा है तो श्वास के साथ बाहर आए। और फिर हम देखते हैं कि जैसे श्वास अंदर जाता है तो हमारे अपने नॉस्ट्रिल्स के दोनों तरफ जो है वो हमको कोल्ड सेंसेशन से फील होते हैं। और जब श्वास बाहर जाता है तो हमको वार्म सेंसेशन फील होते हैं। इसी को हम अनुभव करें, इसी में अपना ध्यान करें और निरंतर जो है अपने चित्त को वहीं स्थिर करने की कोशिश करें। तो हम बीच में देखेंगे कि हमारा चित्त या हमारा मन जो है वो अपने ध्यान से भाग जाता है, कहीं और चला जाता है, किसी और से जो है विचारों में जो है खो जाता है। एंड वी लूज आवर आइडेंटिटी, हमारा मन भी उसी के साथ चला जाता है। तो फिर हम प्रयत्न करके धीरे धीरे अपने मन को जो है वो पुनः अपने ऑब्जेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन या श्वास पे ले आते हैं। ऐसा कई बार होगा और धीरे धीरे मन सधने लगेगा। यही हमारा अभ्यास है। और इस अभ्यास को जो है हम कहते हैं तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास। जो हम प्रयत्न कर रहे हैं अपने मन को वहां पे स्थित करने के लिए, यही अभ्यास है। और धीरे धीरे हम देखेंगे कि वो हमारा मन जो 1 मिनट में 100 बार भागता था, अब वो महीने या 2 महीने की प्रैक्टिस के बाद धीरे धीरे हमारा मन सधने लगा है। अब जो है वो 1 मिनट में 50 बार भागता है, ये 40 बार भागता है या 20 बार भागता है। कभी कभी एक पल ऐसा भी आता है जब हमें लगता है कि हमारा मन स्थिर हो गया। ये क्षण भर के लिए आता है। तो ये यत्न अभ्यास है। अब पतंजलि जी कहते हैं सतो दीर्घकालीन नैरंतर्य सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमि। ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये योग प्रक्रिया, इसको हम जब दीर्घ काल तक करते हैं, लंबे समय तक करते हैं। लंबे समय से हमारा मतलब जो है वो कोई 1 महीना 2 महीना नहीं, 6 महीना भी नहीं। जब इसको हम लगातार सालों साल करते रहते हैं तो ये हमारा मन जो है वो इस साधना में, योग में आरूढ़ हो जाता है। निरंतर विदाउट एनी ब्रेक। ये नहीं कि 5-6 महीने योग किया उसके बाद हम भूल गए, उसके बाद फिर हम करने लगे। तो ऐसा करने से हमको योग में जो है वो सफलता नहीं मिलेगी। निरंतर विदाउट एनी ब्रेक, सत्कार आसेवितो, और बड़े आदर के साथ। अब ये जो है ये हमारा धर्म हो गया है, इसमें हमें पूरी श्रद्धा है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। अब जीवन पर्वंत जो है वो हमको योग की साधना करनी है और इसमें कई कई जीवन लग जाते हैं। भगवान बुद्ध के बारे में हम पढ़ते हैं कि उनके पहले भी कई जन्म हुए पर आखिर में उनको एनलाइटनमेंट मिला। तो इसलिए हमको जो है इसमें अपना विश्वास और श्रद्धा बना करके निरंतर जो है वो योग साधना करनी चाहिए। सत्कार आसेवितो, बड़े आदर के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ, सांगोपांग जो है वो इसका प्रैक्टिस करना चाहिए। दृढ़ भूमि, जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे योग की जो फाउंडेशन है, जो भूमि है, वो बहुत दृढ़ हो जाएगी, रॉक फर्म फाउंडेशन हो जाएगी।
जैसे हम किसी भवन का निर्माण करते हैं तो उसकी नींव जो है वो हम किसी चट्टान पे बनाते हैं, रॉक फाउंडेशन, और उससे हमारा भवन जो है बड़ा सुदृढ़ बनता है। कितनी भी आपदा आए लेकिन हमारा भवन स्थिर रहता है। पर यदि हम अपने भवन का निर्माण रेत पे करें तो जैसे ही आंधी तूफान आएगा उसके साथ ही हमारा भवन भी उड़ जाएगा। यही हमारे योग के साथ होता है। यदि हमने निरंतर योग की साधना किया है, लंबे समय तक किया है, बड़ी श्रद्धा से किया हुआ है, तो हमारा योग जो है वो बहुत फर्म हो जाएगा, रॉक फर्म हो जाएगा, और ये निरंतर जो है हम योग साधना में प्रगति करते चले जाते हैं। अब ये कहते हैं कि वैराग्य क्या है। अभी तो हमने देखा अभ्यास क्या है, दूसरा वैराग्य है। वैराग्य की डेफिनेशन देते हुए पातंजलि ऋषि कहते हैं, दृष्टा अनुश्रावित विषय वितृष्णस्य वशीकार वैराग्यम। कहते हैं दृष्टा, जो कुछ हम देखते हैं, जो हमारी दृश्य इंद्रिय हैं, उनके जो अनुभव हैं और उनके जो विषय हैं। अनुश्राविक, जो हम सुनते हैं, या दो इंद्रियों की बात की है, पर हम जानते हैं कि हमारी 5 इंद्रियां हैं। हमारी दृश्य इंद्रियां हैं, हमारी श्रवण इंद्रियां हैं, हमारी घ्राण इंद्रियां हैं, हमारी जो रस इंद्रियां हैं, हमारी त्वक इंद्रियां हैं। इनके जो भी अनुभव हैं और जो उनके विषय हैं, उनके विषय में जो है हमारी इंद्रियां जो हैं वो रची बसी हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि इंद्रियां तो परांचगामी है, ये बाहरी बार भागती है क्योंकि स्वयंभू ने इनको बनाया है, ये अपने अर्थ की तरफ भागती है। लेकिन कोई धीर जो है वो प्रत्यक्ष दर्शन के लिए, आत्मा के दर्शन के लिए, इसको प्रत्याहार भी कहते हैं, इन इंद्रियों को भीतर की तरफ मोड़ता है और आत्म साधना में लीन हो जाता है। तो यही एक योगी का जो है वो अभ्यास है। और विषय वितृष्णस्य, इन इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें हमारी वितृष्णा हो जानी चाहिए। इन विषयों से इंद्रियों को हमें खींच लेना चाहिए। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो साधक है अपनी इंद्रियों को उसी भांति उनके विषयों से खींच लेता है, जैसे कि एक कछुआ जो है वो अपने अंगों को समेटकर अपने आप में स्थिर हो जाता है। और जब ये हमारी ये अवस्था हो जाती है, जब हमने इंद्रियों का निग्रह कर लिया है, तो इसको हम वशीकार संज्ञा भी कहते हैं। यानी इंद्रियों को हमने वश में कर लिया है, अपने मन को वश में कर लिया है। जो ये अवस्था है ये वैराग्य की अवस्था है। अब इंद्रियों को हमने जो है बाहर नहीं जाने दिया। अब उसमें हम तरह तरह के आमोद प्रमोद मनोरंजन में नहीं लगे। अब हम वर्ल्डली एक्टिविटीज से अपने को विड्रॉ करके जो है हमने अपने योग साधना में लीन हो गए। तो यही वैराग्य है। दृष्टा अनुश्राविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। अब ये कहते हैं कि तत्परम पुरुष ख्याते विषय वैतृष्णयम। कहते हैं कि उससे भी परे एक परम वैराग्य है, तत्परम। वो परम वैराग्य क्या है? पुरुष ख्याते। जब हमें पुरुष का ज्ञान हो जाता है, जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हम सृष्टि को देखते हैं और हम ये देखते हैं कि ये कैसे सृष्टियां जो हैं अपने आप ही चली जा रही हैं। कैसे बीज से पौधा बन जाता है, कैसे पौधे में शाखाएं आ जाती हैं, फूल आ जाते हैं, पुनः फल आ जाते हैं, फिर बीज आ जाते हैं, फिर उन बीजों से पौधा बनता है। तो उसकी वंशानुवृद्धि होती चली जा रही है, प्रोपोगेशन ऑफ इट्स स्पीशीज। ऐसा ही हम भी देखते हैं कि कैसे हम जो है बाल्यावस्था से युवावस्था में आ गए, युवावस्था से हम वयस्क हो गए, वयस्क से हम वृद्ध हो गए। तो ये सारा ही जो है इसका संचालन कोई कर रहा है, वो पुरुष है, और वही उसी के सब कार्य हैं, उसी की सारी रचना है। जब हमें पुरुष का भान होने लगता है तो पुरुष में हमारा विश्वास जो है बढ़ता जाता है और उसी में जो है हमारी सारी श्रद्धा और चेतना जो है उसी में जो है केंद्रित हो जाती है। तो जब ये पुरुष का ध्यान हमें हो जाता है तो ये परम वैराग्य हो जाता है और प्रकृति के जो गुण हैं उनमें हमारी वितृष्णा हो जाती है। हमारा इंटरेस्ट जो है उनमें अपने आप ही कम होने लगता है और हमारा मन और हमारी इंद्रियां जो है अब अपने विषयों की तरफ नहीं भागती।
तो ईश्वर पे भी ध्यान करना जो है ये भी एक हमारी योग साधना में बहुत मदद करता है। अब थोड़ा सा समाधि के बारे में देखें। समाधि के बारे में जो है वो पतंजलि ऋषि ने मोटी मोटी दो समाधियां कर दी। एक संप्रज्ञात समाधि है, दूसरी असंप्रज्ञात समाधि है। संप्रज्ञात समाधि जो है वो लोअर लेवल की समाधि। इस समाधि में जो हमारी प्रज्ञा है वो कार्यरत रहती है। प्रज्ञा जो है हमको पता है हमारा इंट्यूटिव माइंड है और ये हमारे बुद्धि लोक से नीचे हायर माइंड कहलाता है। जितनी भी हम इसमें प्रक्रियाएं करते हैं उसमें प्रज्ञा द्वारा ही होती हैं। और ये जो प्रक्रियाएं हैं इसकी 5 इन्होंने बताए, जो वितर्क है, विचार है, आनंद है, अस्मिता है और जो है वो समाधि है। तो ये 5 जो इसके अंग हैं यही हमारे लोअर माइंड जैसे हम कहते हैं ये इंटेलेक्चुअल माइंड है, ये डेरिवेटिव नॉलेज है, ये एनालाइज करता है, चीजों को क्वांटिफाई करता है, मेजर करता है, क्लासिफाई करता है और जो अपनी इंद्रियों से उसको जो इंफॉर्मेशन मिली है उसी के आधार पे एक मैप बनाता है। तो वितर्क क्या है? वितर्क हमारी लॉजिक है, रैशनल नॉलेज है। और जब हम किसी वस्तु के बारे में जो है उसको वितर्क से जानने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारी वितर्क समाधि है। उसके बाद फिर क्या होता है, वितर्क से हम विचार अवस्था में चले जाते हैं। जो हमारे थॉट्स उसके बारे में बन रहे हैं उसके द्वारा जो हमें उस वस्तु का या ऑब्जेक्ट का ज्ञान हो रहा है वो हमारी विचार समाधि है। उसके बाद फिर आनंद समाधि जो है उसको ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब हम इंट्यूटिव स्टेट में फ्लैशेस आते हैं तो हमको एक आनंद की अनुभूति होती है। अस्मिता क्या है कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या हम ध्यान कर रहे हैं तो जब हमारी आईनेस बनी हुई है, नॉलेज ऑफ सेल्फ, अस्मिता, हम ये देख रहे हैं कि मैं 2 चीजें, एक तो मैं हूं और एक मेरा ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च है, दोनों बिल्कुल अलग हैं। जब तक ये अलग रहते हैं तो ये संप्रज्ञात समाधि है। और जब दृष्टा और दृश्य, ये जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जेक्ट है और प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, तीनों चीजें जब एक हो जाती, जैसे कहते हैं पतंजलि योग अभी हम पढ़ेंगे, तदेव अर्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्यम एक समाधि। जब वो अर्थ या ऑब्जेक्ट, दैट ऑब्जेक्ट इज ओनली शाइनिंग इन आवर कॉन्शियसनेस and consciousness of self is lost, that is known as समाधि। तो वो अवस्था जो है वो असंप्रज्ञात समाधि की है। प्रज्ञात समाधि में हमारी अस्मिता जो है वो बनी हुई है और उसके बाद जो है हम कहते हैं इसका जो प्रज्ञा है इससे हमारी संप्रज्ञात समाधि बनी। अब इसी में जो है हम विचार करते करते, ध्यान करते करते जब हमारा ये अभ्यास जो है समाप्त हो जाता है, जब हमारा कंसंट्रेशन और कंटेम्पलेशन की स्टेट से जब हम समाधि अवस्था में आते हैं तो वो हमारा जो उसका संस्कार था वो लुप्त हो जाता है। दैट कॉन्शियसनेस स्लिप्स अवे और सिर्फ उसके संस्कार रह जाते हैं। कहते हैं विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व, जो हम पहले प्रत्यय या ऑब्जेक्ट पे अभ्यास कर रहे थे वो विराम हो जाता है। सेसेशन ऑफ दैट प्रैक्टिस, संस्कार शेषोवन, सिर्फ हमारी चेतना में उसके संस्कार रह जाते हैं। तो ये जो है हमारी ये असंप्रज्ञात समाधि है, यह असंप्रज्ञात समाधि का हमारा ध्येय है। अब हम आगे आते हैं, हम कहते हैं कि इस समाधि को प्राप्त करने के लिए हमको बड़ा प्रयत्न करना होता है। इसमें क्या है, हमको श्रद्धा की आवश्यकता होती है। इसमें हम पूर्णता जो है वो ये मान के चलते हैं कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं सही कर रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। हम ये नहीं सोचते हैं कि हम अपना समय जो है वो व्यर्थ कर रहे हैं। उसके बाद वीर्य है, जो पुरुषार्थ है, वीर्य की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। उसके बाद स्मृति है, इसको मेधा भी कहते हैं, जो हमारी मेमोरी है वो बड़ी स्ट्रांग हो, जो कुछ भी हम पढ़ें समझें वो हम उसको अच्छी तरह से जो है वो संग्रहित कर ले। उसके बाद कहते हैं स्मृति के बाद समाधि। समाधि जो है वो जो है समाधि प्राप्त करने की इंट्यूटिव फैकल्टी जो है ये हमें
बहुत डेवलप होनी चाहिए, और बार बार प्रैक्टिस, अभ्यास और वैराग्य से जो है वो हम समाधि को प्राप्त कर लेते हैं। और प्रज्ञा पूर्वक, प्रज्ञा जब हमने कहा कि अनुभूति ज्ञान जो है, जो इंट्यूटिव नॉलेज है हमारी, जो हायर माइंड से भी ऊपर है, ये बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। हमारे यहाँ कहते हैं कि जो वेदों का अध्ययन करे उसमें जो इंट्यूटिव फैकल्टी है वो बहुत ही जागृत होनी चाहिए। जैसे हम किसी चीज को पढ़ते हैं या सुनते हैं या उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं तो तुरंत हमको उसका जो है वो तत्व ज्ञान हो जाता है। ये जो तत्व ज्ञान हो जाना जो है यही अनुभूत ज्ञान है, और ये हमारी प्रज्ञा जो है वो बहुत ही बलशाली होनी चाहिए। इतरेशाम, इन पांचों के द्वारा जो है वो हमें समाधि प्राप्ति के लिए योग साधना करना चाहिए। अब कहते हैं और भी एक समाधि प्राप्त करने का साधन है, और वो है ईश्वर प्रणिधानाद्वाहा। जो ईश्वर है, यदि हमें उसमें पूरा विश्वास है, हमारा उसमें पूर्ण श्रद्धा है, हमने पूर्णता उसको जो है अपने आप को अर्पित कर दिया है, सरेंडर कर दिया है, और ईश्वर को ही साक्षी जान करके अगर हम अपनी योग साधना में लीन हो गए हैं तो इससे भी हमको अपनी साधन प्राप्ति में, लक्ष्य प्राप्ति में जो है वो बड़ी सहायता मिलती है। अब ईश्वर के बारे में ये क्या कहते हैं, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। वो जो ईश्वर है वो निरतिशय है, वो सबके परे है, उससे परे कुछ भी नहीं है। ही इज द एब्सोल्यूट, ही इज सर्वज्ञ बीजम, वो सबका बीज है, वो सबको उत्पन्न करने वाली है। एवरीथिंग टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम परमात्मा, फ्रॉम ईश्वर ओनली, और उसी में वो परसिस्ट करती है और उसी में फिर विलुप्त हो जाती है। तो ऐसी ईश्वर की परिभाषा करते हुए आगे ये कहते हैं कि तस्य वाचकः प्रणवः, और उसका जो वाचक है वो प्रणव है, वो ओम है। जैसा हम जानते हैं कि ओम जो है वो शब्द है, एक वाइब्रेशन है, एक वर्ड है। कहते हैं इन द बिगिनिंग देयर वाज द वर्ड एंड वर्ड वाज विद द गॉड एंड वर्ड वाज द गॉड। तो वो वाइब्रेशन जो ओम है वही ईश्वर है और वही पूरा संसार है। हम जब ओम कहते हैं तो इसके 2.5 अक्षर हैं। जो आ है, जो आ का उच्चारण करने से जो वाइब्रेशन बनती है उससे सारा स्थूल जगत का निर्माण होता है। ये वाइब्रेशन जो है ये एब्सोल्यूट का वाइब्रेशन है, ये परमात्मा का वाइब्रेशन है, शिव का वाइब्रेशन है। और जो ऊ है उससे हमारे सारे स्थूल शरीर बनते हैं। जैसा हम थियोसॉफी में पढ़ते हैं, फिजिकल वर्ल्ड के बाद जो हमारा एथरिक वर्ल्ड है, एस्ट्रल वर्ल्ड है, मेंटल है जिसमें लोअर मेंटल, हायर मेंटल है, फिर इंट्यूटिव माइंड है, फिर बुद्धिक माइंड है जिसको हम प्रज्ञा कहते हैं, उसके बाद आत्मा है, उसके बाद अंतरात्मा है, परमात्मा है। तो ये सारे सूक्ष्म लोकों का जो है वो निर्माण हमारा वो वाइब्रेशन से होता है। और उसके बाद जो माँ है वो वाइब्रेशन बहुत सटल वाइब्रेशन, बहुत सटल कॉन्शियसनेस है, और वही परमात्मा का स्वरूप है। तो ओम जो है वो पूरे परमात्मा का जो है वो डिपिक्शन है, और ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है। वास्तव में जो है ये वाइब्रेशन, जिसको अगर हम स्पंदन कहें तो वो बराबर होता चला जा रहा है, और वही जगत की रचना कर रहा है, और वही जगत का संचालन कर रहा है, और वही जगत का पालनहार है। तो कहते हैं तस्य वाचका प्रणव। प्रणव जो है यदि इसके ऊपर हम कंसंट्रेट करें, ध्यान करें, उसका उच्चारण करें, कहते हैं कैसे ध्यान करेंगे, तद जपस तदर्थ भावनम, उसको हम जपें तदर्थ, उसके अर्थ के साथ, जो अर्थ जो है अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, और उसी भावना के साथ कि हम परमात्मा का ही ध्यान कर रहे हैं, और परमात्मा हमको इसमें जो है वो हमारी सहायता करे, परमात्मा हम पे कृपा करे, और उस कृपा से जो है हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। तद जपस तदर्थ भावनम, तो ओम का जप जो है हम उसकी भावना करते हुए करते चले जाते हैं। यही जो है ये परम योग है। अब उसके बाद कहते हैं, अब आइए हम देखें कि कैसे हम इसको योग साधना करते हैं। तो हम आ गए, इसको हम साधना पद पे आ जाते हैं, और साधना पद में जो है
वो हम आते हैं, बहुत समय इसमें जो है वो हम अपना व्यर्थ नहीं करते हैं, क्योंकि हम इसको पहले डिस्कस कर आए हैं। फिर भी जो आवश्यक है उसको एक बार हम समझ लें। तो ये कहते हैं कि ये पतंजलि अष्टांग योग है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टांग। ये 8 अंग जो है ये पतंजलि ऋषि ने हमको बताए, और ये 8 अंग जो हैं वो यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि है। यम और नियम जो है ये 5 यम है इसमें, और 5 नियम है। इसको 5 और 5 10 कमांडमेंट भी कर सकते हैं। यम वो है ये जो कुछ हमको नहीं करना चाहिए, और नियम वो है जो हमको करना चाहिए। फिर उसके बाद आसन है, और प्राणायाम जो है वो हमारे अपने श्वास का जो कंट्रोल है वो हमारा प्राणायाम में आता है। प्रत्याहार जैसे हम पढ़ाए हैं, प्रत्येक चेतना को प्राप्त करना, अपनी इंद्रियां जो बहिर्गामी हैं उनको उनके विषयों से उठा करके अंदर अपने लक्ष्य पे, आत्मा पे जो है उसको केंद्रित कर लेना, ये प्रत्याहार है। और उसके बाद धारणा जो कंसंट्रेशन है, ध्यान जो कंटेम्पलेशन है, और समाधि जो है वो मेडिटेशन कह लीजिए। तो इसको हम एक एक करके जो है वो ब्रीफ में देखते हैं। जो 5 यम है वो ये यम है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यमाः। जो अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय, स्तेय के मतलब होता है चोरी करना, अस्तेय मतलब उससे बचना, ब्रह्मचर्य जो ब्रह्म का मार्ग है उस पे जो चलना है वो ब्रह्मचर्य कहलाता है। अपरिग्रह संचित ना करने की जो प्रवृत्ति है वो अपरिग्रह है। तो अहिंसा क्या है? अहिंसा हमको सिर्फ ये नहीं है कि हमने किसी पे फिजिकल वायलेंस किया, अगर हम वो नहीं करते हैं तो अहिंसा प्रकट करना है। अहिंसा जो है वो मनसा वाचा कर्मणा होनी चाहिए। मन से हम कोई ऐसा विचार ना करें जो किसी के लिए हिंसक है, किसी को कष्ट पहुंचाने की बात है, किसी के लिए जो है हम कोई षड्यंत्र कर रहे हैं, इस तरह के विचार हमारे मन में ना आए। तो जो विचार होते हैं वही हमारी वाणी हो जाती है, वाचा, और जो वाणी है हमारी वही हमारे कर्म हो जाते हैं। और उन कर्म को हम जब बार बार करते हैं तो वो हमारी वृत्ति बन जाती है, हमारी आदतें बन जाती हैं, और जो हमारी आदत बनती है वही हमारा धीरे धीरे हमारा चरित्र या कैरेक्टर बनाती है। और जैसा हमारा कैरेक्टर होता है वैसे ही हमारे संस्कार हो जाते हैं, और जैसे हमारे संस्कार हो जाते हैं वैसे ही हमारी डेस्टिनी हो जाती है। तो यदि हमको अधोगति से बचना है, हम चाहते हैं हमारा अधोपतन ना हो और हमारा योग में अपवर्ग हो, तो हमको जो जितने भी अहिंसा के विचार हैं, जितने भी अहिंसा की भावनाएं हैं, हिंसा की भावनाएं हैं, जितने भी हिंसा के कर्म हैं, इन सबको हमें त्याग कर देना चाहिए। और इसके लिए जो है हमको अहिंसा पे मेडिटेशन करना चाहिए। जब हम मेडिटेट करें तो हिंसा पे जो ध्यान छोड़ के अहिंसा पे आ जाएं। जैसे बार बार हम इस पे मेडिटेट करके जितने हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं उसको हम धीरे धीरे वीड आउट कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो हमारी प्रवृत्ति में जो है वो अहिंसा आ जाती है, ऑल्ट्रुइज्म आ जाती है। सत्य क्या है? जिसको जैसा हम समझते हैं, बिना उसको कोई परिवर्तित किए, बिना तोड़े मरोड़े, बिना मैनिपुलेट किए, जो हम उसको कह दें वही सत्य है। और सत्य का जो पालन करते करते एक अवस्था ऐसी आती है कि हम स्वयं जो है वो सत्यव्रती हो जाते हैं। वी बिकम ट्रूथ आवरसेल्व्स। वो ऐसी अवस्था है कि यदि कोई हम गलत बात भी कह जाएं जो सही नहीं है, पर हम में ऐसे संस्कार आ जाते हैं कि वो भी सही हो जाती है, प्रकृति जो है उसको ही सही कर देती है। आहिस्ते जो है वो चोरी नहीं करने की बात है, किसी की चीज को चोरी से नहीं ले लेना, किसी को छीन नहीं लेना, सिर्फ यहाँ तक ही आहिस्ते नहीं है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिसका हमें कोई उपयोग नहीं है। हमें बहुत से लोग जो हैं वो बहुत से फाउंटेन पेन इकट्ठा कर लेते हैं जो उनके काम को नहीं है। हमारा काम जो है वो एक ही पेन से चला जाता है, तो उस 10 पेन को रखना भी हमारे लिए इस्ते है।
हमें चाहिए कि कोई स्टूडेंट है, कोई विद्यार्थी है, उसको हम गिफ्ट कर दें, कोई जो है अपनी परीक्षा देने जा रहा है उसको हम दे दे, ताकि वो चीजें जो हैं वो प्रयोग में आ जाएं, इस्तेमाल में आ जाएं, व्यर्थ न करें। बहुत से हम लोग ऐसी चीजें संचित करते हैं, जैसे हम घड़ी संचित कर, बहुत से लोगों को वॉच संचित करने की जो है वो प्रवृत्ति रहती है। तो ऐसी चीजों को जो है हम उससे बचें, तो वही हमारा आस्तेय है। ब्रह्मचर्य जो है वो ब्रह्म के मार्ग में चलना है। इससे हम मोटा मोटा समझते हैं कि ये सेक्सुअल कॉन्टिनेंट है, सेक्सुअल मिसकंडक्ट हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन ब्रह्मचर्य सिर्फ इतना नहीं है। ब्रह्मचर्य है ये मल्टीफेसेटेड पाथ है, इसके बहुत से एस्पेक्ट हैं। जैसे मोटा मोटा समझें कि ब्रह्म जो है वो मकड़ी के समान है। जैसे एक मकड़ी है, उसमें से जाला निकल आता है, मकड़ी जो है वो दूर दूर तक अपने जाले तानती है और उस पर वो विचरित करती है, लेकिन और उसमें फंसती नहीं। लेकिन अगर कोई कीड़ा मकोड़ा जो है उस जाल में आ जाता है तो वो जाल में फंस जाता है। उसका कारण ये है कि मकड़ी जो है अपने जालों में ढेर सारा ग्लू लगाती है और उस पर, लेकिन उसको पता है कि कौन से रास्ते ऐसे हैं जिसमें उसने जो है वो ये चिपकने वाला जो पदार्थ है या ग्लू है इसको नहीं लगाया हुआ है। कीड़े को पता नहीं होता, वो फंस जाती है। पर जो मकड़ी है और उसका जो ये जाला है वो इसका एक्सटेंशन है। वैसे ये संसार भी जो है इट इज एक्सटेंशन ऑफ ब्रह्म। जैसे ही कोई एक्टिविटी होती है, मकड़ी उसको जो है वो उस तक उस सूचना पहुंच जाती है और मकड़ी जो है वहां पे पहुंच जाती है। इसीलिए जो ब्रह्मा का मार्ग है उसमें ब्रह्म को पहुंचने के लिए बहुत से ऐसे मार्ग हैं जहां पे फंसने का जो है कोई चांस नहीं है। जो ब्रह्मविद हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, जो ब्रह्म को जानते हैं, जो साधक होते हैं, उनको इन मार्ग का पता होता है और इन्हीं मार्गों पे वो चलते हुए ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये ब्रह्मचर्य है। बहुत सी हमारी आचार संहिता है, हमारी बहुत सी पुस्तकें हैं, उसमें बार बार जो है वो हमको निर्देश दिए जाते हैं कि ये कार्य कर। गीता जो है वो बहुत अच्छी पुस्तक है, उसमें भी बहुत से हैं कौन कौन से कार्य जो हैं करनी है, कौन कौन से कार्य जो है वो विकर्म है, हमको नहीं करना चाहिए। तो यही ब्रह्मचर्य है। हम योगी और साधक को जो है इस ब्रह्म के मार्ग पे चलना चाहिए। अपरिग्रह जो है वो संचित ना करने की प्रवृत्ति है। हम लोग जो है बहुत सी चीजें संचित कर लेते हैं, बहुत सी वर्ल्डली थिंग्स है। हम चाहते हैं हमारा ज्यादा से ज्यादा जो है वो धन बढ़ जाए, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाए, हमारे बहुत से मकान हो जाए, बहुत सी गाड़ियां हो जाए, हमारा फेम हो जाए, हमारे बहुत से संबंध हो जाए, वो संबंधी जो है हमारे वो बहुत जो है वो शक्तिशाली संबंधी हो, उनका बहुत प्रभुत्व हो। तो ये जो सब करने की जो प्रवृत्ति है ये परिग्रह कहलाती है और ये बड़ी बाधक होती है। अंत समय में ये हमें बड़ा दुख देती है। एक बार जो है भगवान बुद्ध जो थे वो अपना प्रवचन करते थे, तो वो देखते थे कि एक वृद्ध व्यक्ति जो है वो बार बार आता है, चुपचाप बैठ जाता है, कहता कुछ नहीं, बस रोता ही रहता है, फिर चला जाता है। तो एक बार जब सब लोग चले गए और वो व्यक्ति अकेला था, तो भगवान ने उससे पूछा क्या बात है, तुम्हें क्या कष्ट है, तुम बराबर रोते रहते हो। तो बोला साहब मैं यहाँ का साहूकार हूँ और जो मैंने बहुत सा धन जो है वो एकत्रित कर लिया। लोग मेरे पास आते थे कर्जा लेने के लिए, तो मैं उनका जो है कोई सामान गिरवी रख लेता था और उसके बाद उनको जो है वो कर्ज दे देता था। उनके बाद फिर कभी इतना पैसा ही नहीं हुआ कि वो मेरा कर्ज चुकाए या उसका ब्याज चुकाए। तो वो सारी चीज मेरे पास एकत्रित हो गई। अब मेरे पास जो है वो बहुत से सोने चांदी के गहने हैं, हीरे हैं, जवाहरात हैं, बहुत सारा जो है मेरे पास रुपया पैसा हो गया है, बहुत सारे बागात हो गए हैं। तो ये सारा धन इकट्ठा हो गया। अब मेरा अंत समय आ गया है और मैं जानता हूँ मेरे पुत्र भी सुपुत्र नहीं है। ये सब धन जब मैं उनको दूंगा तो वो गलत रास्ते पे चले जाएंगे, इसका नष्ट हो जाएगा। तो भगवान ने कहा तुम मुझसे क्या चाहते हो? उन्होंने कहा साहब आप प्रभु है, सर्वज्ञानी है, मैं ये सारा ज्ञान जो है आपको दे देता हूँ, सारा धन, और उसके बाद जब मेरा जो है पुनर्जन्म होगा तब आप अपनी शक्ति से मुझे पहचान करके ये धन दे देना। तो भगवान जो थे उनको बड़ी हंसी आई और उन्होंने कहा कि ये कोई निश्चित नहीं है कि तुम्हारा जो जन्म है वो इतनी शीघ्र हो जाए, और ये भी निश्चित नहीं है कि
कि मैं सदा के लिए इस धरती पर रहूं। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई ये बताओ कि तुमने ऐसी चीजें जो हैं क्यों संग्रहित किया, क्यों इनका जो है तुमने परिग्रह किया, जिसको तुम अपने साथ स्वर्ग नहीं ले जा सकते हो। तो वो बड़ा दुखी हो गया। उसने कहा महाराज आप ही कोई उपाय बताइए। तो महाराज ने कहा देखो ये जो चीजें हैं ये अनात्म हैं, ये अपने साथ आप नहीं ले जा सकते। जो आत्म जो है उसको वो आपके साथ सदैव जाता है। उन्होंने कहा आत्म क्या है? उन्होंने कहा ये जो तुम्हारे कर्म हैं यही संचित होकर के तुम्हारा चरित्र बन के तुम्हारे संस्कार बन जाते हैं, और ये संस्कार तुम्हारे जीवन पर्यंत तुम्हारे साथ रहते हैं। तुम्हारी आत्मा के साथ जितने भी तुम्हारे जन्म होते हैं उनके साथ ही ये जो है पुनः जन्मते हैं। तो तुम्हें आत्म साधना की, आत्म जो की संग्रह की जो है वो चेष्टा करनी चाहिए। तुम जाओ पहले ये अपना जो भी वस्तुएं हैं इनको वापस करके आओ। तो वो अपनी किताबें रखता था, उसने किताबों को खोला, उसने पता होता था कि किससे क्या लिया, उनको बुला बुला करके उसने ये सारे उनकी जो वस्तुएं थी वो सब वापस कर दी, और वापस आकर के वो भगवान बुद्ध की शरण में आया। फिर भगवान बुद्ध ने उनको नोबल एट फोर्थ पाथ जो है उसकी उसने दीक्षा दिया कि कैसे ध्यान द्वारा, मेडिटेशन द्वारा मनुष्य अपने संस्कार जो है वो बना लेता है। तो उसी योग दर्शन का जो है, जो अष्टांग योग है और नोबल एट फोर्थ पाथ है, वो काफी मिलते जुलते हैं, और उसी के लिए हम जो है ये अध्ययन कर रहे हैं। अब ये कहते हैं कि जो नियम क्या है, ये कहते हैं शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। जो शौच है क्लीनलीनेस है, पवित्रता है, जितनी हमारी अशुद्धियां हैं उनको हमें निकाल देना चाहिए। और ये क्लीनलीनेस जो है वो हमारी बॉडीली क्लीनलीनेस नहीं है कि हमने शरीर को नहा धो करके जो है स्वच्छ कर लिया और उसमें चंदन वगैरह का लेप कर लिया तो हम क्लीन हो गए। नहीं, शौच हमारा जो है वो हमारे जितने शरीर हैं वो सारे शुद्ध हो जाए, उसमें हमारा जो है वो प्राण भी शुद्ध हो जाए, हमारा मन भी शुद्ध हो जाए, हमारी इच्छाएं, भावनाएं, कामनाएं, लालसाएं, ये सब की सब जो है ये दूर हो जाएं, और इन सब से विरजित हो करके हम पवित्र हो जाए। तो यही हमारा शौच है, क्लीनलीनेस है। जैसे किसान होता है वो अपनी जो है खेत में से जितनी वीड्स हैं, जिसको हम खरपतवार कहते हैं, इसको चुन चुन करके जो है वो निकाल देता है। ये जो वीडिंग आउट है, ऐसे ही हम अपनी वृत्तियों से काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, जितनी वृत्तियां हैं इनको एक एक करके हमें हटा देना है। और ये मेडिटेशन से ही होगी। जब हम बैठेंगे ध्यान में तो जो ये वृत्तियां आएंगी इनको हमें हटा करके इनकी जो विपरीत वृत्तियां हैं, जो अक्लिष्ट हैं, जैसे कि अगर हमें क्रोध आ रहा है तो हम शांति पे जो है मेडिटेट करें, यदि हमको लालच आ रही है तो आहिस्ते पे हम जो है मेडिटेट करें, अगर हिंसा की भावना है तो हम अहिंसा पे मेडिटेट करें। तो इस तरह से ध्यान करते करते हम जो है अपने को बहुत पवित्र कर लेते हैं। हम देखते हैं हमारे जो प्राण हैं, हमारे जो महाभूत हैं, हमारा जो है वो मन है, वाणी है, कर्म है, ये सब के सब जो है वो बहुत शुद्ध हो जाए। अब उसके बाद दूसरा ये कहते हैं नियम संतोष। संतोष मतलब कंटेंटमेंट है। कंटेंटमेंट के लिए कहते हैं कि वन हु इज कंटेंटेड इज ऑलरेडी इन हेवन। जिसको कि पूरा संतोष हो गया है, अब उसकी कोई इच्छाएं नहीं रह गई हैं, तो वो स्वर्ग में है ही है। तो इच्छाओं का त्याग करना, और जो कुछ हमको प्राप्त है हम समझते हैं कि वही हमारे लिए पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और उसके लिए हमें जो है वो ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमको हमारे आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं वो दे दी हैं, और बाकी जो अनावश्यक वस्तुएं हैं उसकी जो है हमें कोई इच्छा नहीं है। तो ये संतोष, कंटेंटमेंट बहुत आवश्यक है, और यही हमको वैराग्य की तरफ ले जाता है। तपा जो है, तप या ऑस्टेरिटी कहते हैं, जो ये हम प्रयत्न कर रहे हैं, रोज हमको उठना है, रोज आसन में बैठना है, रोज हमको ध्यान लगाना है, ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं यही तप है। ये जो हमारा प्रयत्न है
इसमें जो कष्ट हो रहा है ये तप है। स्वाध्याय के अर्थ है अपना अध्ययन करना, आत्म अध्ययन करना, अपने बारे में जानना। बहुत सारी सुंदर सुंदर पुस्तकें हैं जिसको कि हमें हमारे से परिचय कराती हैं। बहुत सी, जैसे हमारी गीता है, गीता बड़ी सुंदर पुस्तक है, उसमें बहुत से अध्याय हैं जिसमें हमारा जो है वो स्व अध्याय, हमारा आत्मदर्शन होता है। या हमारी विवेक चूड़ामणि है, वो बड़ी सुंदर पुस्तक है। वेद हैं, उपनिषद हैं, बहुत से पुराण हैं, रामायण भी है, इसमें भी हमको अपने बारे में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है। तो ऐसी पुस्तकों को जो है हमेशा अध्ययन करना चाहिए, बल्कि ये हमको एक प्रैक्टिस बनाना चाहिए। जब हम सोने जाएं तो कोई एक पुस्तक है, उसमें से आधे घंटे के लिए या कोई एक चैप्टर जो है हम वो रोज पढ़ लें, और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हमको काफी आत्मज्ञान हो जाएगा। ये आत्मज्ञान जो है हमको अपनी योग साधना में बहुत ही ज्यादा सहायक होगा। ईश्वर प्रणिधानानि, अब ये जैसा हम पढ़ रहे हैं कि ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण रूप से हम ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर दें। जो भी कार्य हम करें उसका फल जो है वो स्वयं जो अपने ईश्वर को प्रदर्शित कर दें। ये ना समझें कि ये कार्य मैंने किया है और इसके फल का अधिकारी मैं हूं। तो ये 5 नियम जो है ये एक साधक को पालन करना पड़ता है। तो फिर से कहें, ये शौच है, क्लीनलीनेस, संतोष, कंटेंटमेंट, तपह, ऑस्टेरिटी, स्वाध्याय, स्टडी ऑफ सेल्फ, और ईश्वर प्रणिधानानि। ये 5 नियम का पालन जो है ये एक साधक के लिए बहुत आवश्यक है। अब ये कहते हैं वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, यदि हम में जो है वो वितर्क जो है, जो हम साधना कर रहे हैं उसमें बाधा आ रही है, बार बार हम अपने मन को जो है मान लीजिए लव एंड कंपैशन पे केंद्रित कर रहे हैं या हिंसा पे केंद्रित कर रहे हैं, तो जो प्रतिरक्ष भावनम, तो और उस पे जो है हमें बाधा आ रही है, तो उसका जो विपरीत भाव है, जैसे अहिंसा का विपरीत भाव, हिंसा का विपरीत भाव अहिंसा है, घृणा का विपरीत भाव जो है वो प्रेम है, तो उसके ऊपर हमको जो है वो कंसंट्रेट करना चाहिए। अपने चित्त को, अपने ध्यान को बार बार वहां पे आके केंद्रित करना चाहिए, तो उससे भी ये जो बाधाएं हमारे जो है वो ध्यान में आ रही हैं वो भी चली जाएंगी। अब ये कहते हैं, आगे चलते हैं, और अब सीधे हम आते हैं अब आसन पे आते हैं। जो तीसरा पद था वो आसन था। आसन को कहते हैं स्थिर सुखम आसनम। अब आसन के बारे में जो है आजकल बहुत सारे जो है बाबा रामदेव जो है वो भिन्न भिन्न आसन बनाते हैं और हम लोग वो आसन करते हैं, पर वो जो आसन है वो सिर्फ फिजिकल बॉडी के लिए है, वो हठ योग है। उन आसन करके जो है हम अपने शरीर को सुदृढ़ करते हैं, अपनी नाड़ियों को सुदृढ़ करते हैं, और उनके द्वारा जो अपने शरीर को एक लंबे समय तक जीवित रहने के लिए, चलाने के लिए जो है वो हमको बहुत सहायता मिलती है। पर यहाँ पे जो है उन आसनों का कोई प्रयोजन नहीं है। जो पतंजलि ऋषि हैं इनमें उन आसनों का कोई भी वर्णन नहीं करते हैं। वो कहते हैं स्थिर सुखम आसनम, जो आसन स्थिर हो और जो कंफर्टेबल हो उस आसन को आप चुन लें। वो आसन कोई जरूरी नहीं है कि वो आपका पद्मासन हो या आपका बद्ध पद्मासन हो या आपका जो है, अगर आपको बैठे बैठे ध्यान लग जाता है तो कुर्सी पे बैठ करके भी आप ध्यान कर सकते हैं, चौकी पे बैठ के ध्यान कर सकते हैं। तो वो स्थिर सुखम आसनम, जो आसन स्थिर है और जो स्टेबल है और सुखदायी है, कंफर्टेबल है, उसी आसन को हमें चुन लेना चाहिए। अब कहते हैं, अब प्राणायाम पे आते हैं। प्राणायाम की डेफिनेशन देते हुए पतंजलि ऋषि कहते हैं तस्मिन् सति श्वास निश्वास संयोग गति विच्छेदः प्राणायामः। अब वो जो हम श्वास और प्रश्वास, जो हमारा श्वास अंदर जा रहा है और जो श्वास हमारा बाहर जा रहा है, उसकी जो गति है उस गति को पहले हम
कंट्रोल करते हैं, अपने वश में करते हैं, और धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करते करते जो रेचक और कुंभक है उसका स्तंभन कर देते हैं। जब हम अपनी सांस को जो है ऑब्जर्व करते हैं, जब उस पर ध्यान करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, तो हम देखेंगे, ये अनुभव की बात है कि ये श्वास जो है वो धीरे धीरे बहुत सूक्ष्म होते जाते हैं, और वो श्वास जो है उसके बीच का जो इंटरवल है वो धीरे धीरे बहुत बढ़ता चला जाता है, और धीरे धीरे एक स्थिति आती है कि उनका बहुत तनुकरण हो जाता है, और एक योगी बाद में उनको स्तंभित कर देता है, सस्पेंड कर देता है। जब ब्रीदिंग को सस्पेंड कर देता है, जब हम सांस नहीं ले रहे हैं, बहुत सूक्ष्म सांस आ जा रहे हैं, ऐसी अवस्था में हमारा ध्यान जो है वो अपने आप केंद्रित हो जाता है, और एकाग्रता की जो है एक चरम अवस्था आ जाती है। और यही एकाग्रता जो है वो हमारे योग में, आत्मा का परमात्मा से योग में जो है वो बड़ी आवश्यक होती है। तो एकाग्रता प्राप्त करने के लिए हम इस प्राणायाम जो है इसका बराबर जो है अभ्यास करते हैं। अब कहते हैं, आगे चलते हैं। अब इसके बाद हमने जो है वो प्रत्याहार की बात की थी, और प्रत्याहार में हमने समझ लिया था कि अपने ध्यान को जो है वो अंदर की तरफ ले आना जो है वही प्रत्याहार है। तो ये कहते हैं, स्व-विषय असंप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इंद्रियाणाम प्रत्याहारा। अपने जो है वो स्व-विषय, अपने विषय को जो है उसमें इंद्रियों के विषय से उनको मोड़ करके अंदर की तरफ ला करके आत्मा में, ब्रीदिंग आउट एंड ब्रीदिंग इन, जी जी, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, जी कंसंट्रेशन ऑन दिस, जी थोड़ा एलिब्रेट कर दीजिए। देखिए, ब्रीदिंग इन जो है, ब्रीदिंग आउट, ये प्राणायाम में रेचक और कुंभक कहते हैं। प्राणायाम का अपना बड़ा विज्ञान है, आपको पता है, तरह तरह के प्राणायाम हैं, और उसमें पहले तो हम ये रेचक और कुंभक जो है इसके बीच का जो अंतर है उसको बढ़ाते चले जाते हैं। जब हमने श्वास ले लिया तो श्वास को काफी देर होल्ड करते हैं, जल्दी नहीं निकालते हैं। इसी तरह जब हमने प्रश्वास किया, जब एक्सपायर कर दी, ब्रीदिंग निकाल दी, तो उस स्टेज में भी रोकते हैं, और उसको धीरे धीरे करके एक स्तंभन की क्रिया आ जाती है जिसमें हम अपने प्राण को सस्पेंड कर देते हैं। अब यहाँ पे जो इस योग दर्शन में हमको इसके लिए बहुत विस्तृत अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। यदि हम अपने श्वास प्रश्वास को सिर्फ ऑब्जर्व करते रहें, हम ये देखें कि श्वास अब अंदर जा रहा है तो आई एम जो है कॉन्शियस ऑफ, अवेयर ऑफ दैट, और जब श्वास निकल गया तो आई एम अवेयर ऑफ दैट। तो ये ऑब्जर्वेशन की प्रोसेस से इसको जो है प्राण अपान क्रिया कहलाती है, और इसी से ही हमारा जो है वो श्वास सिद्ध हो जाता है। हम देखेंगे, खुद ही ऑब्जर्व करेंगे, कभी आप करिए, तो ये हमारे प्राण का बहुत तनुकरण हो जाता है। जो सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर जा रही है, वो धीरे धीरे बहुत सूक्ष्म होती चली जाती है। एक अवस्था ऐसी आती है कि हम ये सोचते हैं कि हम श्वास ले भी रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, हम डर जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। जितना भी सूक्ष्म सांस जा रहा है वो हमको जीवित करने के लिए पर्याप्त है। तो यही प्राणायाम हमको जो है वो योग साधना में करना है। सिर्फ प्राणायाम ही हमारा ध्यान जो है ध्येय नहीं है। हमारा ध्येय जो है वो अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध करके एकाग्रता प्राप्त करना है। इसको हमें ध्यान में रखना है। जी, बहुत कृतज्ञ हूँ कि आपने बहुत ही प्रशंसा के शब्द शुरू में बोले, जिसके शायद मैं लायक नहीं था। ये आपके ही सहयोग से और सभी लोगों के सहयोग से कार्यक्रम चल रहा है। दूसरी बात, मैं एक पूछना चाहता था, एक छोटा सा साधारण प्रश्न था कि जैसे आपने मेडिटेशन के लिए बताया कि ध्यान के लिए मतलब कुछ कंडीशंस हैं, तो मैंने कई जगह पढ़ा है, जैसे वो कहते हैं कि फिक्स्ड टाइम होना चाहिए, फिक्स्ड प्लेस होना चाहिए, और आई थिंक नहाने पे बहुत, स्नान पे बहुत उन्होंने कहा है कि बिना स्नान किए नहीं कर सकते। तो कई बार आदमी ऐसी जगह होता है जहाँ बहुत ठंड होती है, अवस्था ऐसी है, नहीं स्नान कर सकता है, तो उस कंडीशंस में कैसे करें? मतलब बिना स्नान किए इसे ध्यान कर सकते हैं या फिक्स्ड प्लेस, फिक्स्ड टाइम आवश्यक है?
बस ये थोड़ा सा मैं जानना चाहता था। ये देखिए, इसमें इन्होंने खुद ही कहा, जब का स्थिर सुखम आसनम, तो आप बहुत कंफर्टेबल हो जब आप ध्यान कर रहे हैं। और यदि ऐसी अवस्था है जो बाधा डाल रही है तो उसको दूर कर लेना चाहिए। यदि बहुत ज्यादा ठंडक है तो हमको जो है कोई वार्म प्लेस में चला जाना चाहिए, क्योंकि अभी हम योगी नहीं हैं। जो योग आसन में सिद्ध हो जाते हैं उनको तो फिर ये चीजें बाधा नहीं डालती हैं। वो बहुत जो है वो बर्फ जैसी जगह में, गुफाओं में बैठ के भी ध्यान में चले जाते हैं। लेकिन चूंकि हम बिगिनर्स हैं, साधक हैं, तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि कोई कष्टकारी कार्य न करें। हम कंफर्ट, जैसे अब जो भी समय है, अगर हम बहुत सवेरे नहीं उठ पाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो कोई आवश्यक नहीं है। जब भी आपकी आंख खुलती है और जब आपके लिए इसमें सुविधा है, सूटेबिलिटी है, उस समय हम अपना जो है वो ध्यान का समय निश्चित कर लें। और उसमें यह भी नहीं है कि जरूरी नहीं है कि हम जो है वो बहुत ध्यान के जो वस्त्र हैं वही वस्त्र पहने। हाँ, वस्त्र आपके साफ सुथरे होने चाहिए। ये भी नहीं है अगर आप स्नान नहीं कर सकते हैं, आंख मुंह धो लें, गायत्री मंत्र से अपने आप को शुद्ध कर लें, फिर अपने आसन पे जो है वो आरूढ़ हो जाए। तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। इसी तरह स्थान का भी है, जहां भी आपका ध्यान लग जाए। और आप देखें कि जो भी कंडीशंस आपके ध्यान को सुदृढ़ करती है, तो वो उन्हीं चीजों को करते हुए अपने ध्यान को आगे बढ़ाते चले जाएं। धीरे धीरे जब आपका ध्यान लगने लगेगा तब ये सब बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। वंस यू कंसंट्रेट, तो फिर देन यू आर नॉट अवेयर कि मुझे गर्मी लग रही है या मुझे सर्दी लग रही है, और उन सब चीजों से जो है आप बाधित नहीं होते हैं। तो शुरू में ये नहीं होना चाहिए कि पहले हम अपने यम और नियम को ही पुष्ट कर लें, दृढ़ कर लें, तभी हम धारणा ध्यान समाधि में जाएंगे। तो बड़ा समय लग जाएगा, आपका योग शुरू ही नहीं हो पाएगा। तो ये चीजें साइमल्टेनियस चलती हैं। ध्यान करके ही आप अपने यम और नियम को जो है वो पक्का करें, और ध्यान करने से ही आपका श्वास भी स्थिर हो जाएगा। तो प्राणायाम है, अगर आपका ध्यान लग रहा है तो अपने आप ही आपके प्राण और आपकी श्वास प्रश्वास ये सब नियंत्रित हो जाएंगी। तो जो हमारा ध्येय होना चाहिए कि जितनी जल्दी हम शुरू करें वो हमें शुरू कर लेना चाहिए। वेट नहीं करना चाहिए कि हम वो जब वो मुहूर्त हो आएगा तब हम शुरू करेंगे, उस काल में शुरू करेंगे। दूसरा ये होना चाहिए कि अपनी साधना को निरंतर करते रहना चाहिए, कोई इंटरवल ना हो, इसको बीच में हम छोड़े नहीं, दीर्घ काल तक करें, बड़े ऑनेस्टली करें, बड़े रिलीजियसली करें, बड़े श्रद्धा होके करें, बड़ी ईश्वर में पूर्ण आस्था रख के करें, तब हमको योग के फल जो है प्राप्त होते हैं। और ऐसा होता है, जैसे जैसे हमें बीच में कोई इंडिकेशंस आते हैं या फल की प्राप्ति होती है तो हम जान जाते हैं कि हम जो है वो सही मार्ग में हैं और योग में जो है हम प्रगति कर रहे हैं। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा रहा। आज तो एकदम मंत्र मुग्ध कर देने वाली आपने ये अपना वक्तव्य दिया, तो काफी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। I must appreciate Dr. Satsangi ji. Wonderfully explained all details he has given to us. What we understand as far as the Patanjali Yoga Sutra, he has explained very nicely. Wonderful. I must congratulate him. डॉक्टर बहुत बढ़िया आपने कह दिया है, एंड आल्सो बहुत धन्यवाद आपका। एंड आल्सो यू हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द क्वेश्चंस वेरी राइटली। व्हाट इफ आई वांट टू टेल समथिंग, एज यू सेड, ईश्वर प्रणिधानानि इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज द ओनली वे वी कैन सरेंडर टू हिम, बिकॉज वी हैव टू राइज लाइक steps of the ladder which are pointing towards the sky. So we must climb step by step. Yam, niyam, asan, pranayam, pratyahar, dhyan, dharana, samadhi. All this we believe. But in our theosophy, as our we all have a up-down way. We are actually starting from the upside. That is, we are starting from not from the body but from the thought level. So our efforts are more on the
intellectual level, our way is Jnana Marga. So, Dhyan, Dharana and Samadhi, these three higher steps are very important for the theosophist. Dhyana means our belief. What is your belief? Belief about perfected ones. And Dharana is your vision. So what vision you have in front of you? And then Samadhi is union. So belief, vision and union. If you are make yourself clear, then you become first body fullness you achieve, heart fullness you achieve, mindfulness you achieve, and you become a truthful. So it is asked us to show ourselves what we are. That is the message we have. So what we have to remember is, already everything is explained by Dr. Satsangi, but I am adding, not anything criticizing, but just adding to what it has been said. See, our journey is, though our journey is from ego to emotion to intellect to soul, we are understanding how these things are working, because we sow our thought and reap our action. So thought and actions are so much connected. We sow our thoughts and reap our action. What happens to these actions? Actions are taken by our ego. So what type of actions are there, whether it is selfless or not, that all depend upon your ego, I-ness. Then we sow our action and reap our habit. And these habits are handed by the subconsciousness. So habits are stored in the subconsciousness. That is what our emotional mind is. Emotionally, most of us or many of us are selfish. Then we sow our habit and reap our character. So character of a person is the function of intellect. We have that kind of sharp intellect, which is right and which is wrong, to discriminate. But we are careless and we do our actions and build our character. So intellect must be made pointing, penetrating and sharp. So thus we sow our character and reap our destiny. This information of the destiny is then taken by the soul, which is stored in our causal body. And therefore Krishnamurti always asks, what is it that reincarnates? So whatever these are stored in our causal body, in the form of whatever you call it, that is the reason that we have to take incarnation after incarnation. So Ashtanga Yoga asks us to raise our consciousness from ego to emotion to intellect. And we in Theosophists, being intellectuals, being wise persons, said to be, because Theosophy is for those who knows the thinking. So he uses his intellect, viveka, thinks, and then he changes his emotional force and ego, all that one by one, we come from top to down. This is what our efforts we are doing. We are not criticizing anyone, but we are understanding what is good in them. And I think we can think in this way also, in this aspect. Just whatever Satsangi has explained very nicely, step by step, all those are required. Yam Niyama also internationally accepted now. So these are must first. Unless that is there, we cannot have Sthira Asana. So we don't sit even. That is what it is said. I am not taking much time. Thank you for giving me this opportunity. Thank you, Satsangi Ji. Thank you, sir. Thank you very much. बहुत आपका आशीर्वाद बना रहे हमारे ऊपर. धन्यवाद. धन्यवाद.